Okay, so what we are going to study today is simple equations. Now, normally this is the first chapter of the book, the first book that we have, right? हो गया? Yeah. So it's the first chapter of the first book. And so we're going to start from elementary level. There are two aspects to this entire topic. One is essentially about framing equations, our ability to frame equations, and the second is our ability to solve the equations. But even before we are able to frame equations and solve equations, we are expected to understand what is the meaning of this simple equations. And whenever we say equation, there are certain things that we need to know before this. Some things like there's something known as constants. So what is a constant? Constant is something whose values will not change. For example, 2 is a constant, 3 is a constant. So no matter where you see this design, the value will be 3 itself. जहां पर भी 2, जहां पर भी ये डिजाइन दिखेगा वहां पे वैल्यू क्या बनेगी 3. So the value of this design will not change irrespective of the situation. Therefore, it is known as constant. यानी ये fixed चीज है. Now, generally, constants are represented as A, B, C. Right. Similarly, there is something known as a variable. Variable, something whose values will change depending upon the circumstances. So generally the variable is X, Y, Z, W. These are known as variables. Okay. So a product of a constant and a variable, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, यानी मान लेते हैं AX ले लिया, जैसे या इस टाइप से, इस चीज को प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल इज नोन एज टर्म. इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स. Now, whenever we take two or more terms, for example, one of the term is AX, another term may be BY. So when you take two or more terms which are connected by some mathematical operator. So maths has 4 fundamental operations. One is addition, subtraction, multiplication and division. So these are the only 4 fundamental mathematical operators that we have. All other operations are known as user defined operator. थर्ड बुक के अंदर अपने पास एक चैप्टर भी है बाइनरी ऑपरेशंस करके, जहां पे यूजर अपने हिसाब से मीनिंग डिफाइन करता है. लेकिन मैथ्स के अंदर जो 4 फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, प्लेस, ईयर, this design will always mean addition. For example, if you have 2 plus this design, the answer is definitely 5. There is no ambiguity about it, right? Therefore, it is known as fundamental operator. So we have 4 fundamental operators. So when you connect these two terms by some fundamental operator, this is known as expression. इस चीज को expression बोलते हैं. Now when you have this expression which is equated to some constant or a term, चाहे हम constant से equate कर दें या term से equate कर दें, this representation is known as equation. समझ में आ रहा है? equation में क्या क्या चीजें? You have to equate two things. What do you equate? You equate a expression or a constant. That is known as equation. Now this is known as general equation. For example, if you have something like 2x plus 3y is equal to 4. So this is something known as equation, and this is actually known as linear equation. इस equation को क्या बोलते हैं? Linear equation. This equation consists of 2 variables because x and y are there 2 variables. So this is known as linear equation in 2 variable. समझ में आ रहा है? ये linear equation है 2 variable में. तो लीनियर का क्या मतलब होता है और इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इनका एक अलग अपना अपना एक मतलब होता है. हमें क्या देखना है? हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अभी हमें वो समझ में आना चाहिए. लीनियर जो होता है, लीनियर का हिंदी में अनुवाद क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इन हिंदी? सीधा, स्ट्रेट, सीधी लाइन, सीधी चीज को हम लीनियर भी बोलते हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? एक सीधी लाइन बनेगी, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन. अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कहा 2x minus 3 या minus 6 is equal to let's say 4. This is a linear equation in one variable. This is a linear equation in one variable. So if you are having a linear equation in one variable, or you may be having a linear equation in 2 variable or 3 variable, then there is something known as solving of equation. पहले तो क्या equation, और फिर हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं solve करना. तो solve करने का क्या मतलब होता है? solve करने का मतलब
वेरी गुड। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। वो एक्स की वैल्यू कैसी होगी? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है? सेटिस्फाई कराने का मतलब है अगर हमने एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डाली तो यहाँ पे जो LHS, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इस वो इक्वल टू RHS आना चाहिए। यानी एक्स की ऐसी वैल्यू अपने को चाहिए ताकि जब हम एक्स को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें तो LHS इज इक्वल टू RHS बनना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम, ये मीनिंग होता है सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बेसिक रूल्स हैं, आप सबको पता है। क्या रूल है? मान लेते हैं कोई चीज लेफ्ट साइड में नेगेटिव में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इस केस में लेटर से 2x यहाँ पे 4 है तो 6 इज माइनस, सो राइट साइड इट विल बिकम प्लस। मान लेते हैं हमारे पास 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 होता तो x यहाँ पे जाके क्या हो जाता? माइनस। ऑफ कोर्स यू नो दिस राइट, लेफ्ट साइड से राइट में माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। So in this case, let us say 2 is equal to 10. Something which is being multiplied with respect to x, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर कोई चीज डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। आई एम श्योर यू नो दिस। 10 यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 5। लेकिन मान लो मेरे पास x/2 इज इक्वल टू 10 होता तो क्या करते? राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, x इज इक्वल टू 10 इंटू 2, 20। नो बिग डील, बहुत सिंपल सी बात है। लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है हमें एक्स को आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब उसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। कोई चीज प्लस में है तो उसको ले जाओ राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में। कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको वहां से दूर करो। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आइसोलेटिंग एक्स। यहां तक बात समझ में आती है? तो नो, इन दिस केस वी हैव रिटन x इज इक्वल टू 5। हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टू 5। अब इस x इज इक्वल टू 5 का कोई मतलब है? हाँ, वो तो चलो हमने सॉल्व कर लिया। तो मैंने कहा LHS इक्वल टू R, मान लो 2x की जगह आपने 5 पुट किया तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? -6। तो 10 - 6 यही बनेगा, जो कि 4, जो कि RHS आ गया। इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन है। पहला अंडरस्टैंडिंग के x is equal to 5 is the solution of the equation 2x - 6 is equal to 4. But is there any meaning to this? इसका कोई और इंटरप्रिटेशन या कुछ मतलब है, या एक वैल्यू आ गई बस? ओके, देखिए हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? लीनियर मतलब सीधा। सबसे सिंपलेस्ट लाइन कौन सी होती है जो हमने कभी भी बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो भी देखी है? कौन सी लाइन? ये नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स, नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। लेकिन जो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल होती है इसको एक नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? एक्स। सुना ये वर्ड? ये पॉइंट होता है 0 0, ये होता है 1 2 3 4 5 6। इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4। ये नंबर लाइन में होता है। वैसे ही ये जैसे नंबर लाइन, ऐसे आप उसको ऐसे घुमा के 90 डिग्री कर देंगे तो ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया तो ये बनेगा 1 2 3। समझ में आ रहा है? ऐसे नीचे क्या बनेगा? -1 -2 -3। समझ में आ रही? नो, इस वाली वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सभी ने देखी हुई है ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस, x axis and y. X axis is horizontal to the ground and y axis is perpendicular to this x axis. क्लियर है ना? अब हम मान लो मैंने आपसे पूछा कि एक पॉइंट चाहिए अपने को 2 3। मैंने एक बात पूछी कि पॉइंट 2 3 कहाँ मिलेगा? मान लो अपने को ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? 2 ऐसे लेके जाऊं, 3 ऐसे लेके जाऊं, ये मान सकते हो ये पॉइंट मान लो P है। किसी भी पॉइंट का रेफरेंस हम दो वैल्यू से देते हैं, एक पहले वाली वैल्यू और एक बाद वाली वैल्यू। पहले वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? हाँ, एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा तो, और कॉमनली क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सुना होगा।
पहले वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलेंगे बाद वाली वैल्यू को, और एक और ये नाम बोल रही थी, बताओ क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं एंड कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। ये 9वीं 10वीं में रहा होगा या पहले रहा होगा 7वीं 8वीं में या 11वीं 12वीं में आया था, नहीं रहा होगा, ग्राफ तो था ही। तो पहले वाली वैल्यू को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को भाई, किसी भी पॉइंट का रेफरेंस 2 पॉइंट से आता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, हाँ मिल रही बात कुछ, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है ऐसे, आ रहा है, वेरी गुड। चलो तो ये हमारे, अब यू नीड टू नो, जो चीज नहीं पता हमें वो ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको पहले थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं, 1 मिनट। मान लेते हैं मैंने एक लाइन बनाई, मैंने कहा जी ये लाइन है, और मैंने कहा जी ये बिंदी है, और मैंने कहा जी ऐसा है, मुझे इस लाइन और इस बिंदी के बीच में दूरी बताइए, कौन सी दूरी बताओगे, ये डिस्टेंस चलेगा, हाँ ये सीधी तो है, ये कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आपसे कोई बोले कि ये एक लाइन है और एक बिंदी है, बताओ इन दोनों की दूरी, तो कौन सी दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी लेनी होती है, कौन सी दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी। शॉर्टेस्ट दूरी कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर, आप समझ रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है मान लेते हैं बी है, ये वाली लाइन और ये मान लेते हैं डी, कौन सी छोटी है, लॉजिकल है ना, मान लो ऐसी कोई लाइन है 90 डिग्री पे, अगर हम दूर जाते जाएंगे तो लेंथ हमें बड़ी करनी पड़ेगी, ताकि अगर मैं इसको ग्राउंड को टच करना है, मान लो ऐसे 90 डिग्री, इसको मैं शिफ्ट करूंगा ऐसे तो ऊपर उठेगा, तो और फालतू लेंथ चाहिए ना टच कराने के लिए, इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो कौन सी लेंथ होती है, पर सेंटर नहीं बेटा, परपेंडिकुलर, सेंटर में गड़बड़ हो जाएगी, मान लो ये पॉइंट है, ये लाइन है, इसका सेंटर तो यहाँ आएगा, सेंटर नहीं हुआ, परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड ए पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हेन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा। अगर कोई, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब अगर कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने कहा कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो कौन सा डिस्टेंस बताना है अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर, ये बात क्लियर है ना। अब हम समझते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। इसका मतलब है कि अगर अपन वाई एक्सिस पे ये दूरी डाल दें, यही डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है, ये देखो यहां से आए दो सेंटी, ये 2 है ना, ये 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा लॉजिकली, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स, अब एक्स एक्स का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उत्तरे ये हाइट कितनी है, ये देखो जितनी हाइट ये उतनी हाइट ये है ना, 3, 90 डिग्री। बनाते तो ऐसे हैं, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, वेरी गुड। अब मुझे कुछ चीजें आप मुझे बताइए, मान लेते हैं मेरा पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, 1 यूनिट, ये 1 से 1 लिखा है ना, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 1 यूनिट, और एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं पहले वाला, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 1 0 या 0 1, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये जो 1 है ये वाई एक्सिस है, कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे, ये कितना है 1, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो ऊपर ही बैठा हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस से दूरी को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब बाद वाली वैल्यू, यानी ये जो हम 1 लिखते हैं ये एक्चुअली में 1 0 होता है, हम लिखते नहीं है लेकिन होता क्या ये 1 0, ये पॉइंट क्या होगा 2 0, ये पॉइंट क्या होगा, और ये ऐसे ये कितना बनेगा
-1 0, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? समझ में आ रहा है? इस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 आती है, तो इसका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैथ्स की सबसे सिंपलेस्ट लाइन कहलाती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल, क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट, समझ में आ रही बात? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो लाइन की तो इक्वेशन होती है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। याद रहेगा ये? अच्छा, इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? y एक्सिस से दूरी, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और फिर y कोऑर्डिनेट आएगा। अब y एक्सिस से कितनी दूरी है? 0, तो पहले 0, और x एक्सिस से कितनी दूरी है? 1, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? 0 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? वैसे ये कितना बनेगा? इसका मतलब y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? तो अगर कहीं पर x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ आ जाए, इसका क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हैं अपन? y एक्सिस की बात कर रहे हैं। कहीं पे y इज इक्वल टू 0 लिखा आ जाए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का ना? ओके, अब 1 मिनट के लिए समझते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होएगा? 1 1 लग रहा है, यहां से 1, यहां से 1। ये पॉइंट क्या होगा? पक्का 2 1 होगा। y एक्सिस से कितनी दूरी है? y एक्सिस से 2 दूरी है ना, क्या बनेगा? 2 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? 3 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? 4 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट बन करेगा, बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? -1 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? -2 1। ये पॉइंट क्या बनेगा? मान लो मैंने इन सारे बिंदुओं को जोड़ दिया, सबका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये लाइन बना रहा हूं जो कि 4 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू एक्स एक्स, इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए? y इज इक्वल टू -4 है ना, y इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका ये मतलब है। y इज इक्वल टू k, इसको जनरलाइज कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू k किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन पैरेलल टू एक्स। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से नीचे उस पॉइंट से पास कर रहा है। पल्ले पड़ रही है बात सभी को? इसी तरीके से मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या था? 3 0। ये वाला पॉइंट क्या है? 3 1। ये पॉइंट क्या होगा? 3 2। ये पॉइंट क्या है? 3 3। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या बनेगा? 3 -1। ये बनेगा 3 -2। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? सबका x इज इक्वल टू, समझ में आ रही बात? अगर मैंने ये लाइन बना दी, मान लेते हैं 5 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5। y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 5 यूनिट की। तो जो अपन ने सॉल्व किया था ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 आया था ना, इसका क्या मतलब है? इट मींस इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 5। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आनी चाहिए। x इज इक्वल टू k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. These are the simplest possible line in the linear equation or simple equation. ये समझ में आ रही बात? अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो अपने आप में एक्सिस बन गया, लेकिन अगर इक्वल टू सम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये है लाइन विच इज पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. इट विल डिपेंड ऑन वेदर वी आर राइटिंग एक्स इज इक्वल टू के और वाई इज इक्वल टू के. आर वी क्लियर? So whenever we say we are solving a linear equation in one variable, basically we are trying to figure out a line which is parallel to either x axis or y axis. इसका ये मतलब होता है. Clear है यहाँ तक? Now let us try to understand what do you mean by a linear equation in two variable. जैसे हमने लिखा था example है ना 2x plus 3y is equal to 4. So let's say there is an equation 2x plus 3y is equal to 4. This is a linear equation in. What is the meaning of this and why do we call it as a linear equation? मैंने कहा था linear का मतलब है straight. अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक सीधी लाइन बनेगी. चूंकि लाइन सीधी बनती है इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं. ठीक, मैं उससे कुछ समझाना चाहता हूं आपको, इसलिए एक बार बना के दिखाता हूं. अगर हमें किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना है या कोई भी लाइन खींचनी है, कितने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए लाइन को डिटरमाइन करने के लिए? 2. क्योंकि अगर मैंने कहा ये पॉइंट है तो यहाँ इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो कितनी लाइनें पास हो सकती हैं इन दोनों पॉइंट से? सिर्फ और सिर्फ एक. तो जब भी हमें प्लॉट करना होता है ग्राफ तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमेशा. तो सबसे शॉर्टकट या बेस्ट तरीका होता है एक को x मानो एक को y. एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? x को 0 मान लिया अपन ने तो y की वैल्यू 4/3. y की वैल्यू 0 माना तो समझ में आ रही बात? 2 0 कहां मिलेगा? x x पे 0 0 मान लेते हैं, ये 1 है ये 2 है. 2 0 ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं मेरा 0 है ये 1 है, सॉरी उल्टा, ये 1 है ये 2 है. तो 4/3 मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा. 4/3 is 1.33, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा. Can I say we can draw this line? Let us say this is the line. This line is represented by equation 2x plus 3y is equal to 4. तो अगर कोई बोल रहा है ना 2x plus 3y is equal to 4 क्या है, तो 2x plus 3y is equal to 4 is a straight line. समझ में आ रहा है? Which passes through these 2 points. No problems? No. Now how many solutions are there for this equation? इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? अभी वो तो बताया था व्हाट इज सॉल्यूशन. ये यहाँ पे कैसे हैं तुम्हारे बैग्स? नहीं नहीं चलो, पढ़ रहे थे ना? ओके. नाउ सो द क्वेश्चन इज how many solutions, right? हाँ, because what do you mean by solution? Solution का मतलब है अपने को x और y ऐसा होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे. वो तो अपन जितने मर्जी निकाल लें. देखो एक सोल्यूशन तो यही है, ये भी है. मान लो मैंने x को 1 डाल दिया तो y की वैल्यू 2/3, ये भी तो सोल्यूशन ही है. x को मान लेते हैं मैंने 3 डाल दिया तो ये 6 बन जाएगा, ये -2/3, ये भी तो सोल्यूशन ही है. ऐसे कितने सोल्यूशन बन सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं. तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखो नॉर्मली जब हम ये बोलते हैं ना 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं, इसका मतलब होता है वी आर लुकिंग फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन. व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर? अ यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हाँ, वो दोनों
वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको यूनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 3y = 4। मान लेते हैं अपन ने ले लिया 4x - 2y = 6 या 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, मान लेते हैं अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनेगा? मान लो ये x है, ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो -7/2 आ जाए, सॉरी, तो ये बनेगा -7/2 और y की वैल्यू 0 पुट करी तो x बनेगा 7/4। तो 7/4 एंड 0, तो 7/4 इज 2 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, यहां पे आएगा। मैंने कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं लिया, बट चलो। और -3.5, हाँ हाँ जा, 3.5 का मतलब है 1 2 3, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आने का मतलब है रफली this is the equation which is represented by 4x - 2y. Now this is my, ये मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये सोल्यूशन क्या है? ये यहां से डिस्टेंस, ये यहां से डिस्टेंस, ये पॉइंट जो है ये सोल्यूशन है। ये पॉइंट रेड वाली लाइन पे भी है और ब्लैक वाली लाइन पे, यानी ये पॉइंट दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइनों को सेटिस्फाई। इसका मतलब यह है कि अगर अपन दो लाइनें बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो कटेगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? क्या दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती हैं? नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। एंड चूंकि इट इज नॉट पॉसिबल, वी एंड अप सेइंग इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज व्हेन वी से इट इज अ यूनिक। ये तो है ग्राफिकल मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? बेसिकली दो तीन मेथड्स होते हैं, एक तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आई एम श्योर यू नो दैट, बट फिर भी समझाने के लिए कोफिशिएंट इक्वेट करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 4। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2। तो अगर अपन ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, तो नीचे वाले को भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दिस विल बिकम 4x + 6y = 8। दिस इज 4x - 2y = 7। आप माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 8y = 1। तो y = 1/8। तो y की वैल्यू 1/8, जो कि बहुत छोटी सी है, नजर आ रही है। y की वैल्यू 1/8 किसी भी एक इक्वेशन में मान लो इसमें पुट कर दिया हमने, 2x + 3 × 1/8 = 4। तो 2x कैन बी टेकन एज 4 - 3/8, right? So 2x can be taken as 32 minus 3 is 29/8. So x can be taken as 29/16. तो ये 2.1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 के आसपास, तो ये वैल्यू नजर आ रही है। x कोऑर्डिनेट मेरा बनेगा 29/8 और ये बनेगा 1/8। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट चाहे आप इस पे डालो या इस पे डालो, ये सेटिस्फाई करेगा। सो व्हेनेवर वी से we have to solve two linear equation, इसका बेसिक मतलब ये होता है we are searching for the point of intersection represented by the two equations or the two straight lines that will be formed by the two equations. तो जो दोनों इक्वेशन है उनसे जो दो लाइनें बनेंगी, वो जो दो लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे काटेंगी, वो जो पॉइंट मिलेगा उसको सोल्यूशन बोलते हैं। पल्ले पड़ रही है कहानी यहाँ तक? बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? सॉल्व बोलते हैं, सॉल्व करो का क्या मतलब है? एक तरीका तो यही होता है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका होता है क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि 2x - 3y = 4 है, आई मे वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस, आई मे वांट टू से 3y = 2x - 4। तो y can be written as 2x - 4 divided by 3. Now this y can be substituted in the first equation. So I have 2x + 3 into y can be written as 2x - 4/3 is equal to 4. And of course you can find out, take out the LCM. तो ये बन जाएगा मेरा 6x प्लस ये बन जाएगा 6x - 12 डिवाइडेड बाय 3। क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? 2x + 3y,
नहीं, वो तो एक ही बात है, इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इज इक्वल टू 12। चलो, नहीं नहीं, इक्वेशन तो मैंने ये वाली ली है, सेकंड वाली ली है ना। नहीं नहीं, अच्छा यही ली है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कहूँगी क्या आइडेंटिटी सी क्यों आ रही है। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया तो सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पास 4x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू बनेगी 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इज 12x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 21। ये करा जा सकता है। तो ये कितना बन जाएगा, 8x इज इक्वल टू, इसमें से कितना बनेगा 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13/8, और यहाँ तो 29 आया हुआ है। हाँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो 3y की वैल्यू बन गई 2x माइनस 4, ठीक है। तो y की वैल्यू बन गई 2x माइनस 4/3, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले में लिखा अपन ने 4x, हाँ यहाँ गलत लिख दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 था। एनीवे यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। उसको डाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करके x निकाल देंगे, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। या करना है इसको, ठीक, यहाँ प्लस लिखना था क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी प्लस वाली थी। तो हाँ, तो ये बेसिकली मेरा बनेगा 4 माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x अपॉन 3 आ जाएगा। ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 माइनस 2x अपॉन 3, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x because it is a single equation, single variable, 29/16 आ जाएगा। once again we are going to put this value here, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, right? now and of course there is a graphical method. Which is the best method in case we get a situation like this? Substitution, elimination, वैसे तो हमारी इतनी अच्छी किस्मत होगी नहीं कि दो लीनियर इक्वेशन आ जाए। हाँ, अगर एमसीक्यू है और एक्स और वाई निकालना है तो बेस्ट तरीका होगा गो बाय ऑप्शंस। अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं, थीटा क्वेश्चन नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है गो बाय ऑप्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस आएगा, वो अपना हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा मौका हमें मिलेगा, उस केस में हमें ये सब कुछ आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? एक इक्वेशन देता हूं, मैं चाहता हूं आप उसको सॉल्व कीजिएगा। x plus 2y is equal to 19 and 19x plus 38y is equal to let's say 361। क्या हुआ तुमने? हाँ जी, भव्य, मानवी एंड पारुल समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं हो रहा, एक ही लाइन है क्या? क्या हो गया? कुछ लोग कर रहे हैं अभी, मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग, देख।
क्यों? इस इसको जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 19x। चलो कोई नहीं, गलत हो गया होगा, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, रुको। इसको 36 मान लेते हैं, अब कर लो चलो। 361 की जगह 36 मान लो, करो। क्यों? दो है ना, मैं कहाँ मैं माइनस करने कह रहा हूँ। क्यों? तो फिर आंसर ये तो 0 आ गया, वो क्या आ रहा है? 26 कैसे 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो? फिर से ओहो, प्रॉब्लम है मतलब। चलो रुको, तो मान लेते हैं 19x प्लस 38y इज इक्वल टू 361, यही बात है। माइनस माइनस माइनस, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 325। इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसका मतलब ये है, हाँ मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझ आ गया मतलब कि मैं समझाना चाह। नाउ इन दिस केस वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू 0, इन दिस केस वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू माइनस 325। अब इसका एसेंस ये है कि मान लेते हैं, हमारा ग्राफ बनाते हैं 1 मिनट के लिए। मान लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अपन पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो ये x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 19/2। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 19, x की वैल्यू 19 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया। और y की वैल्यू 19.2 यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, ये 19/2। तो अगर हम लाइन बनाएंगे तो हमारी एक लाइन इक्वेशन ऐसे बनेगी। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी? ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब मान लेते हैं हम रेड कलर से ये सेकंड वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया x, यहाँ मैंने ले लिया y। x की वैल्यू 0 करूंगा तो y की वैल्यू बनेगी 361/38 विच इज 19/2। सेम आ रहा है? ठीक है, हो गया। अनवाइंड क्यों नहीं बना? y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो ये बनेगा 361/38, तो कितना बन जाएगा? 19 बनेगा। तो ये 19, तो 19 0, तो ये सेम पॉइंट आ गया और ये भी सेम पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करूंगा तो ये लाइन कैसे बन रही है? ओवरलैपिंग लाइन बन रही है। इसका मतलब है ये इक्वेशन देखने में चाहे अलग हो, ये और ये देखने में अलग लग रही है, बट ये सेम इक्वेशन है। देखने में तो अलग है क्योंकि वहां 19 है, वहां 1 है, लेकिन ये इक्वेशन क्या है? सेम। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो इक्वेशंस हैं और ये सेम है? समझ में आ रही बात? वो हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे और ग्राफ बनाने का टाइम थोड़ी ना होगा हमें। तो हम क्या देखेंगे, अभी मैं उसको बताता हूं उसको क्या देखना है। मान लेते हैं पहले वाला सिनेरियो ये है। अगर हम सेकंड वाला सिनेरियो देखते हैं, ये वाली लाइन तो हमारी ब्लैक वाली लाइन थी। अब हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं, ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू बनेगी 36/19। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू बनेगी 36/19। ठीक है, तो 36/19 यानी 2 के आसपास आएगा। 38 होता है, मान लेते हैं ये 1 है तो ये 2 होता है, यहाँ पे कहीं पे आता ये वाला पॉइंट। और वैसे ही ये वाला पॉइंट करीब यहाँ कहीं आता। और कौन सी वैल्यू? ये वाली एक्स की वैल्यू।
तो y की वैल्यू 36/38। हाँ कोई बात, कुछ भी आए मैंने तो पैरेलल ही बनानी है। ये वही वाली बात, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड, नॉर्मल सॉल्व करके दो आंसर निकाल के दो डंडी खींच देते थे, बोला आंसर तो पक्का ही सही आएगा, कुछ ही कर लो। एनीवे तो इस केस में अब हम x0 पुट करेंगे तो बनेगा 36/38। नाउ 36/30 इज अ वैल्यू व्हिच इज स्लाइटली लेस देन 1, राइट? तो यहाँ पे कहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। एंड व्हेन यू पुट दिस वन y इज इक्वल टू 0, 36/19 आ जाएगा व्हिच इज स्लाइटली लेस देन 2। बट व्हेन यू प्लॉट दिस टू ग्राफ, जब हम इन दोनों का ग्राफ का लाइन बनाएंगे, ये लाइन ऐसे नहीं। नाउ यू व्हाट डू यू सी? यू सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल। चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इट इज ए कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 325 तो कोई तुक नहीं बनता। 0 इज इक्वल टू 0 में फिर भी तुक बनता है। 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी प्रूफ होगी, लॉजिकल बात है, लेकिन 0 इज इक्वल टू -325 का कोई मतलब नहीं है। इस वाले केस में, पहले वाले केस में कितने पॉइंट्स कॉमन है? इनफाइनाइट सारे पॉइंट्स। और कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। यानी इस वाले केस में कितने सॉल्यूशंस हैं मेरे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस वाले केस में मेरे पास कितने सॉल्यूशन है? नो। दो केस। तीसरा केस क्या होगा? इंटर, उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन। यानी कि अगर कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट। यानी तीसरे वाला केस कौन सा होता है? अब जब हम दो लाइनों को सॉल्व करते हैं, तीन ही आंसर हो सकते हैं। या तो यूनिक होगा एक पॉइंट, या ओवरलैपिंग होगा इनफाइनाइट, और या पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आती? अब अगर हम ध्यान से देखें, इनफाइनाइट में अगर हम कोफिशिएंट्स देखें, ये 1 था तो ये 2 था तो ये 19 था, और नीचे वाले का कोफिशिएंट 19 था, 38 था। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं, तभी तो 19 से गुणा करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला बन जाएगा। इस वाले केस में अगर हम देखें तो 1/19 was equal to 2/38 was not equal to 19/36। अगर यूनिक सॉल्यूशन आना होता, मान लेते मैंने यहाँ लिखा x + 2y is equal to 19 और मैं लिखता 9x + 38 y is equal to 36, तो यहाँ पे एक आंसर आता। उस केस में क्या बनता? 1/9 is not equal to 2/38। ये कंडीशन है इनफाइनाइट की, ये कंडीशन नो की, और ये कंडीशन है यूनिक की। इसके ऊपर एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन आएंगे अब हम वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 is equal to 0, और हमारे पास a2x + b2y + c2 is equal to 0। दो इक्वेशन है। अगर मेरे पास a1/a2 is not equal to b1/b2 आ जाए तो ये वाली कंडीशन बनेगी। ये किसकी कंडीशन है? यूनिक। यूनिक का मतलब है दोनों लाइनें कटेंगी और एक आंसर मिलेगा। या फिर अगर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 आ जाए तो ये वाली कंडीशन है। ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है। कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। इसमें कितने बनेंगे? नो सॉल्यूशन। इन दोनों केसेस को कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट ये याद होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी बताता हूं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। याद क्या रखना है? बोलो a1/a2 is not equal to b1/b2 gives unique solution। बोलो पूरा सेंटेंस। हाँ भाई, सबको बोला था बोलने को, दो को थोड़ा बोला। बोलो a1/a2 is not equal to b1/b2 gives unique solution। फिर से बोलो। फिर से बोलो। ठीक है।
अब बोलना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो। फिर से बोलो। एक बार और बोलो। ओके गुड। अब तीसरा बोलना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 गिव्स नो सॉल्यूशन। बोलो इसको, 2 बार बोलना है। Now, what is the kind of question that we may get in the examination using this learning? The question may be something like this. For example, I say 2x plus ky is equal to 7 and 7x plus 12y is equal to 9. What should be the value of k such that you get a unique solution? What should be the value of k such that you get a unique solution? What should be the value of k such that you get infinite solution? What should be the value of k such that you get no solution? अभी ये पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस मैं आपसे। आपको क्या चाहिए? k की वैल्यू चाहिए ताकि क्या मिले आपको? तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? तो इसका मतलब है 2/7 इज नॉट इक्वल टू k/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7k इज नॉट इक्वल टू 24। k इज नॉट इक्वल टू 24/7। इसका मतलब है k जब 24/7 नहीं होगा, यानी इस वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस की क्या मिलेगी? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका ये मतलब है। आ रही बात समझ में? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बातें मार रहा था इसलिए तेरे को समझ नहीं आया। तेरे को पता है, डिस्कस कर रहा था ना उससे, मल्टीप्लिकेशन में लग रहा था। ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी 2/7 इज नॉट इक्वल टू k/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर। मान ले इक्वल टू होता है, इक्वल टू की जगह बस बीच में डंडी लगा दे। 24 इज नॉट इक्वल टू 7k, ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड होगा, यानी k इज नॉट इक्वल टू 24/। इसका मतलब है कि अगर अपने को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू 24/7 नहीं हो सकती है। अगर 24/7 हो जाती तो क्या पंगा होता इसमें? तो क्या होता? बराबर मतलब, हाँ वो ठीक है, फिर क्या होता? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? अगर 24/7 नहीं है, कुछ भी है, 2, 3, 4 जो मर्जी, यूनिक आंसर आएगा। लेकिन अगर 24/7 है तो प्रॉब्लम क्या बनेगी? क्या हो सकता है? हाँ तो क्या होगा, अभी तो पूछ रहा हूं तुमसे। अगर मान लो मैंने k को 24/7 रख दिया होता तो पंगा क्या होता? इसमें दिक्कत कहां आती? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता या नो सॉल्यूशन हो जाता? नो सॉल्यूशन हो जाता, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। समझ में आ रहा है? तो नो सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये रख दूं, अब अगर के की वैल्यू आप 24/7 करते तो क्या होता? क्या होता?
तो भी 9 हो जाता। मान लिया अपन यहाँ 24/7 रख देते। 24/7 होल डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और ये बनता 4/14, तो ये बनता 2/7, ये बनता 24/7 गुणा में 1/12, तो ये बनता 2/7 इज इक्वल टू 2/7 इज इक्वल टू 2/7। क्या बनता? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता। अरे दिख नहीं रहा क्या? 2/7 इस 4/14, क्या किया है मैंने यहाँ पे चेंज, ये देख। अरे तुम ये मत सोचना कि बोलेगा बेटा ले ये क्वेश्चन कर ले, A1/2 इज नॉट, ऐसा कोई कैट वाला नहीं बोलेगा, इसे घुमाएगा थोड़ा थोड़ा। अंग्रेजी तो आनी चाहिए कम से कम, सवाल तो समझ में आना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि अब आपको यही तो देखना है, नहीं तो ये A1/2 इज नॉट इक्वल टू B1, तो कहीं किताब में भी लिखा होगा। फिर समझना क्या, समझना यही है कि अगर वो हमें घुमाएगा तो हमें कैसे समझना है उसको। हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। ये अगर A1/2 इज इक्वल टू B1/2 इज नॉट इक्वल टू C1/2, तो नो इनफाइनाइट है, यानी पिछले वाले केस में नो सोल्यूशन आएगा, इस वाले केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन। एग्जामिनर और स्मार्ट है, वो इसको और घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। मैं बताता हूँ क्या पूछेगा वो, ये देखो। लेट अस से what should be the value of k such that the system of equation becomes consistent? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? What should be the value of k such that the system of equation becomes consistent? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब दो केस बनेंगे। कौन सा? केस 1 या तो यूनिक हो जाए और या दोनों हो जाए। अब कौन सा केस बनेगा ये बताओ इसमें, इस सवाल में। क्यों? क्यों? ये तो पूछ रहा हूँ। यस, बिकॉज यहाँ पे अब देखो A1/A2 जो है वो C1 C2 के बराबर नहीं है। इनफाइनाइट करने के लिए मुझे तीनों रेशियो बराबर करनी पड़ेगी। तीनों रेशियो में ये तो हमें दिया नहीं हुआ, तो पता नहीं, उसको जुगाड़ करेंगे क्या बनेगा। लेकिन ये दोनों तो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट नॉट इक्वल है, यानी A1/A2 इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट का केस तो रूल आउट हो गया। इनफाइनाइट केस तो रूल आउट, तो बचा कौन सा? यूनिक। तो इसका मतलब अपने को क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा? यूनिक के तरीके से। तो आप बोलोगे 2/7 इज नॉट इक्वल टू k/12। लेकिन अगर यहां पे ये होता, फिर क्या अप्रोच लगा सकते थे? तो ये दोनों, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल, तो अब कौन सी कंडीशन लगती इसमें? इनफाइनाइट की कंडीशन लगती है, बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ता? 2/7 इज इक्वल टू k/12 लेता और हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। आ रही बात समझ में? तो कंसिस्टेंसी उसी तरीके से इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन, पांचों टर्म्स टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें फंसेगा नहीं। कैट का तो पता नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का गारंटीड मिलेगा, जो हमने अभी थोड़ी इतनी देर में पढ़ाई करी है। चाहे वो स्नैप हो, चाहे एनमैट हो, चाहे सी मैट हो, चाहे मैट हो। आई कैनॉट गारंटी जैट में, आई कैनॉट गारंटी कैट में। इसके अलावा पक्का एक या दो क्वेश्चन आपको इन एग्जाम्स में मिलेंगे 100%। हाँ हाँ लिख दो, कैट और जैट मत लिखना, क्योंकि अगर उसमें क्वेश्चन आया तो ये एक बड़े क्वेश्चन का एक हिस्सा जरूर बनेगा। प्योर प्योर कम चांस है कि अपना एक क्वेश्चन सीधा इस पे मिल जाए।
इसका चांस थोड़ा कम है, किसी के साथ कंबाइंड होके जरूर आ सकता है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूरा प्योर सिंगल क्वेश्चन बनेगा ये। आ रही बात समझ में यहां तक? नाउ सिंस वी आर स्टडिंग दिस लीनियर इक्वेशन, लेट अस आल्सो स्टडी समथिंग नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशंस। हम एक चीज पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या बनेगा? ये होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं? एनी आइडिया व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस? सेम, होमो यानी सेम, बट क्या सेम? जिनका डिग्री सेम होता है। अगर सारी टर्म्स की डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो बेसिकली ये सिचुएशन बनती है कि अगर कोई वेरिएबल होता तो उसकी डिग्री 0 होती, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज गिवन एज 1। सिंस द डिग्रीज आर डिफरेंट, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, इट इज नो लॉन्गर अ होमोजीनियस इक्वेशन। If you want to make the degree same, so I may want to write this value as 0. Now, whatever variables are there, their degree is same. This line is known as homogeneous equation. Now, it means if constant is not there, it will become homogeneous. What is the other interpretation of this equation? ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि जिसका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि जब x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 विल सर्टेनली हैव 0 0 एज अ सॉल्यूशन। ये तो गारंटीड है। 0 0 कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये लाइन 0 0 से पास करेगी। इसका मतलब है कोई भी लाइन जो 0 0 से पास करती है उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि मान लेते हैं अगर अपन ने 4 लिख दिया तो यहाँ पे x0 डालोगे, y0 डालोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 4। लेकिन 0 इज इक्वल टू 4 तो होता नहीं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी। आ रही बात समझ में? होमोजीनियस इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन। अब जो मैंने पहले पढ़ाया है और जो मैंने अभी बताया है, इसको कंबाइन करके मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइएगा क्या बनता है। ठीक है? What is the condition such that two homogeneous equations gives us a unique solution? What is the condition such that two homogeneous equations give us a non-zero solution? What is the condition such that two homogeneous equations gives us no solution? Let's say I have kind of framed these three questions. अब आप मुझे इसको बताइए। अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है तो आप मुझे ये आंसर बता पाएंगे। यूनिक क्या होगी? सारे केस में यूनिक होएगा? नहीं। तो फिर इनफाइनाइट केस कब को क्या बोलोगे? क्या इनफाइनाइट केस नहीं बनेगा?
चलो रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? एक ही सॉल्यूशन। वो एक सॉल्यूशन कौन सा होगा पहले बताओ मेरे को, है? 0 0। क्योंकि अगर एक लाइन 0 से पास कर रही है मान लेते हैं, और दूसरी लाइन अपने को बनानी है, और यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो कहां से पास करनी चाहिए वो लाइन? और कुछ तो ही नहीं सकता, या हो सकता है कुछ और? यानी अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या मिलेगा? 0 0, उसके अलावा कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नॉन जीरो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जीरो के अलावा। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा। जीरो के अलावा कब मिलेगा सॉल्यूशन? जब वो लाइनें ओवरलैप करेंगी। उसके अलावा कुछ हो सकता है? यानी अगर अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो अपने को लाइन क्या करानी पड़ेगी? अपने को लाइन ओवरलैप करानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और तीसरा वाला क्या होएगा? नो सॉल्यूशन कब बनेगा? जब लाइन पैरेलल होंगी। ये कब होगा? है? क्यों क्यों नहीं होगा? हाँ, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो लाइन नो सॉल्यूशन है तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और अगर पैरेलल होगी तो इस लाइन से थोड़ी सी तो दूर होगी, और जैसे या तो नीचे होगी या ऊपर होगी। नीचे हुई या ऊपर हुई तो जीरो से पास नहीं करेगी, और जीरो से पास नहीं करेगी तो होमोजीनियस नहीं होगी। इसका मतलब है इनकंसिस्टेंसी डज नॉट एग्जिस्ट इन होमोजीनियस इक्वेशन, यानी नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बाय डेफिनेशन होमोजीनियस वही लाइन होती है जो 0 0 से पास करती हैं, और अगर एक लाइन 0 से पास कर रही है, दूसरे को 0 से पास नहीं कराओगे तो या तो दूर रखोगे, जैसे ही दूर रखा वो लाइन होमोजीनियस नहीं बनेगी। यानी ये वाला जो कंडीशन है, इनकंसिस्टेंसी डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखना है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? अब मान लो मेरे पास दो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो कंडीशन ये बनेगी। मान लो तो मेरे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिलेगा तो क्या बनेगा? ये यूनिक सोल्यूशन। और ये यूनिक सोल्यूशन होगा क्या? 0 0, ध्यान रखना, और कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया तो क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसलिए इसको ना नॉन जीरो भी बोला जाता है, यानी जीरो के अलावा। जीरो तो है ही है, लेकिन क्या इनकंसिस्टेंसी या नो सॉल्यूशन बनेगा? नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये होमोजीनियस की कंडीशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पल्ले पड़ रही है कहानी? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? राइट नाउ, whenever you will be asked questions on this concept, you will have to remember and memorize all these conditions simultaneously in terms of consistency, inconsistency, unique, inconsistency, unique and infinite, and in inconsistency, no solution. हाँ भाई, पीछे समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच इधर, ठीक है? ओके, नाउ दिस इज वन पार्ट। मैंने कहा था इसको दो, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट, दो आइडियाज हैं इसके पूरे चैप्टर में। तो एक आइडिया तो यही था कि लाइन होती क्या है, इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, और अगर हमें ये सॉल्व करना पड़ा तो कैसे करेंगे। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये ग्राफ प्रूफ बनाने की जरूरत क्या थी, बिकॉज जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको कहीं पे कोई ग्राफ का कोई डिस्कशन नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सिखाया है कि महीने एक के बाद मुझे आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। कौन सा? 2x प्लस 3y is greater than or equal to 7, 7x minus 8y is less than or equal to 3, x is greater than or equal to 0, y is less than or equal to 0। कुछ टाइम के बाद इनइक्वालिटीज आएगी,
जब इनइक्वालिटी आएगी तो पहले इक्वालिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो मैं आज समझाना चाह रहा हूं आपको, ताकि जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ कुछ पढ़ा पढ़ा सा है, नहीं तो सीधा बाउंसर जाएगा। तो उसकी थोड़ी सी फाउंडेशन टच करने के लिए मैंने आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिया है कि भाई इक्वेशन होती क्या है, उसको हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, और उसका ग्राफ अगर बनाना पड़ा तो ऐसा क्यों बनेगा। If you understand this, our ability to solve these kinds of questions which are inequality based questions, और उसको LPP वो एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये सारा आता है, तो हमें बेसिस बहुत बेसिक फंडामेंटल हमें समझ में आएगा, तो हम इसको धीरे धीरे बिल्ड कर पाएंगे। तो इवेंचुअली वी वुड हैव टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, देयर वी विल बी रिक्वायरिंग दिस इन मोर डिटेल्स, बट दिस विल सर्टेनली बिल्ड यू सम सेंस ऑफ फाउंडेशन एज टू व्हाट इज द एसेंस एंड मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैं क्या अभी से डर लग रहा है सर ये क्या लिखा हुआ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा? नाउ in this particular chapter, the first chapter that is, हाँ हाँ महीने बाद काम आएगा है, अभी छोड़ दे दिमाग से निकाल दे। हाँ नाउ मतलब, लेकिन ये वाला तो अभी काम में आएगा, इनइक्वालिटी A1/A2, हाँ ये सब अभी, ये सब जरूरी है तुम्हारे लिए। अब इसके बाद इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को, जो कि आसान काम है, या तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ऑप्शन मेथड, हम कुछ ना कुछ मेथड यूज कर लेंगे। इसमें तो मुश्किल पार्ट क्या है? मुश्किल पार्ट है इक्वेशन को बनाना, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन इज बेसिकली understanding the English language and converting that English language into mathematical language. That is the challenge. Now there could be questions like, you know, easy questions in the sense मैं as I dictate कर रहा हूँ just for the sake of explaining to you guys what do I mean by framing of equations. So let's say I say the cost of 2 chairs and 3 table is 84, the cost of 5 chairs and 9 table is 86. What is the cost of 2 tables and 8 chairs? So let the chair decide. Now you see, this is practically a maths question, but it's not looking like a maths question. It is an English statement, right? You have to understand the meaning of this English statement, convert it into mathematics, and then you frame an equation, and then of course solve the equation. Now there are few things that we really need to know. Let's say in this case, the cost of 2 chairs and 3 tables is 84. So of course in our school days we used to do it, let the cost of a chair be X. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि let the cost of chair लिखने की क्या जरूरत है? क्यों लिखना है भाई? ये मतलब मजे आ रहे हैं तो अलग बात है, but why do we have to write? So but बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक चेयर की कॉस्ट x मान लेते हैं, तो एक चेयर की कॉस्ट x है, तो यहाँ पे कितनी चेयर्स हैं? 2x, तो 2 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 2x. नाउ दिस इज मैथ्स, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। 3 चेयर की कॉस्ट क्या होगी? 3x, मतलब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल से 2 चेयर की कॉस्ट 2x। एंड का मतलब और, मतलब ये वाला और हिंदी वाला, which would be translating into addition for mathematics, क्योंकि हमें ये तो चाहिए, इसकी कॉस्ट चाहिए और इसके साथ कुछ और चाहिए, इसलिए हमने क्या किया? एडिशन। क्या चाहिए हमें? टेबल। एक टेबल की कॉस्ट मान लो y माना, तो 3 टेबल की कॉस्ट हो जाएगा। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, जिसका कि सिंबल होता है ये, जहां पर भी इज लिखा होता है दिस इज दिस, तो इज का मतलब इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 84। Now this sentence now has been converted into this equation. By the same logic, you may want to write as 5x plus 9y is equal to 86. Of course, now you can always solve it and find out the cost of 2y plus 8x. इसका वैसे निकल, x और y आएगा तो solve कर लोगे. Now the problem is not in solving. The problem is in
क्यों भाई? आने दे, क्या तेरे को क्या दर्द हो रहा है? नेगेटिव तो नहीं आ रहा? आने दो नेगेटिव, मैं तो रैंडमली बनाया, टेंशन ना लो। नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं। पर ध्यान क्या रखना है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन जब फ्रेम होएगा, एक्स और वाई की वैल्यू कैसी आएगी? ये तो चलो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, मुझे मानी। जब बनाएंगे, एक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? है? क्यों बराबर आएगी भाई? पॉजिटिव? नेचुरल नंबर होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए? हाँ। इट कैनॉट बी फ्रैक्शन, इट कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि वो क्वांटिटी है। नहीं, वैसे एक्स और वाई निकालना है ना? हाँ। हाँ, कॉस्ट है ना? हाँ, आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकती है बस। पैसे में भी हो सकती है, बच्चों की हो सकता है, हम बच्चों की कुर्सियों की बात कर रहे हैं फिर से। 655 क्या पैसे है? क्या कॉस्ट? ऐसे कैसे हो? गलत है। वाई या तो नेगेटिव आ रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या आ गया? प्लस में? नहीं, वो तो कॉस्ट है बेटा, आ सकती है। एक बात सुनो मेरे से, देखो, 2 कुर्सी और 3 चेयर की कॉस्ट अगर 84 रुपए है, तो 166 कैसे हो सकती है बेटा एक चेयर की कॉस्ट? हाँ, गड़बड़ मैं कौन सा कह रहा हूँ, सही है। वो नेगेटिव आएगा तभी बैलेंस होएगा। हैं? भाई तुम दिल पे ले गए हो इस सवाल को। दिल पे ना लो, अगर दिल पे लेना है तो मैं पढ़ देता हूँ किताब में से सही सवाल। ये लो, इसको पढ़ लो, इसको कर लो। मतलब ये मैंने इक्वेशन बनाने के लिए दिया था, इतना दिल से मत लगाओ। ये लो, दिल वाला सवाल लगाना है तो इसको कर लो, ये हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, चलो कोई नहीं, तुम्हारा मन कर रहा है, मुझे दिख रहा है। सर इसका आंसर तो 496.8 आ रहा है। If 2 tables and 3 chairs cost 1800 and 3 tables and 4 chairs cost 2600, then find the cost of each table and each chair. ये कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। अब कर लो इसको, चलो आंसर बताओ उसका। क्या बेटा? सिर्फ कैट में अलाउड है, वो भी बेसिक।
हाँ जी, आया आंसर? कितने लोग आया? रेज योर हैंड्स। अच्छा अच्छा, निकाल लो, कोई बात नहीं, करो। कितनी आई? क्या है? एक्स क्या है क्या? आ गई सभी को? हाँ जी, पीछे लास्ट उधर आ गया। हाँ जी, आपका बना या अभी कुछ रह गया? हो गया? सभी का आ गया? ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, गलत फहमी मत रहना कोई भी। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट इतना आसान नहीं आएगा। वो अभी जो आएगा भी करेंगे थोड़ी देर में। नाउ ये सिर्फ ये बात को समझाने के लिए था, इधर इधर ध्यान दो। ये बात सिर्फ ये समझाने के लिए थी कि हमें इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी और इस फ्रेमिंग का क्या मतलब होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, जैसे एजिस के अंदर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आती है एजिस में। फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं 2 years hence। मान लो मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस एक बार लिख देता हूं। 2 years hence Ram will be 3 times as old as Shyam. 2 years from now Ram will be 3 years more than Shyam. 3 years ago Ram was 5 times as old as Shyam. So अब मान लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये समझिए इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन का मतलब समझिए तराजू होता है। इक्वेशन का मतलब होता है तराजू। बैलेंस करना है अपने को दोनों तरफ। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? अगर इधर वजन ज्यादा है, मान लो ऐसे हो जाएगा, तो हमें इधर वेट डालना पड़ेगा ताकि तराजू बैलेंस हो जाए। दूसरा तरीका है, मान लो इधर वेट ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। इक्वेशन का मतलब है बैलेंस। अब किसी भी जगह वजन बढ़ाने का मतलब होता है, मान लो ये बराबर है, इधर मुझे ज्यादा करना है, तो या तो इधर ऐड कोई चीज ऐड करूंगा या इधर कोई चीज मल्टीप्लाई करूंगा। ऐड या मल्टीप्लीकेशन से वो वैल्यू बढ़ती है। कोई भी वैल्यू में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू घटती है। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। किसी चीज में कुछ ऐड किया या गुणा किया तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। किसी चीज में कुछ घटाया या भाग दिया या डिवाइड किया तो वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लेते हैं पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले बोलता है 2 years hence। हेंस का मतलब होता है लेटर, बाद में, 2 साल बाद। समझ में आ रहा है? 2 साल बाद। तो मान लेते हैं आज राम की उम्र R है और श्याम की उम्र S है। ये कब की बात कर रहा है? प्रेजेंट एज R और S। ये स्टेटमेंट कब की बात कर रहा है? 2 साल बाद की। तो 2 साल बाद अगर राम बड़ा होगा तो श्याम भी बड़ा होगा। उस वक्त राम विल बी 3 times एज ओल्ड एज श्याम। राम जो है वो 3 गुना होगा श्याम का। अगर हमें मान लो कंफ्यूजन हो रही तो आप ये समझो हिंदी में कि राम की उम्र बड़ी लग रही है या श्याम की। इस केस में राम विल बी 3 times एज ओल्ड श्याम। इसका मतलब है राम जो है वो श्याम का 3 गुना होगा। इसका मतलब जो राम है वो ज्यादा है और ये कम है। टाइम्स, जब भी वर्ड टाइम्स आता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना। तो अब ये ज्यादा है कम है तो मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं। 3 किधर होगा, राइट या लेफ्ट? राम की तरफ। ये ज्यादा है, ध्यान दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगी और ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो किधर होएगा? इधर होगा। ये समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं?
इक्वेशन इज ए तराजू, बैलेंस करना है, तो मल्टीप्लाई या एडिशन उस तरफ होगा जहां पे कम है। और वो कैसे पता चलेगा? जो भी स्टेटमेंट है हमें उसको ब्रेक करना है हिंदी में। हाँ बता बता क्या पूछे। फिर बोलता है 2 years फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब है? आज से 2 साल बाद, यानी इसका भी मतलब यही है, राम ये श्याम, 2 साल बाद ये, 2 साल बाद ये। राम विल बी 3 years मोर देन श्याम, राम ज्यादा या श्याम ज्यादा है बताओ? राम विल बी 3 years मोर, राम विल बी मोर, यानी राम क्या है? ज्यादा, और ये है कम। ये कितना ज्यादा है? मोर, मोर का मतलब एडिशन, लेस होता तो, लेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मोर का मतलब होता है एडिशन। तो ये कम है, तो इक्वेशन करनी है तो इसको भरा, ये कम है तो इधर ज्यादा करना पड़ेगा, क्या करूं? समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं 3 years ago, मतलब राम ये श्याम है, 3 साल पहले, क्या लिखें? एगो का मतलब अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, तो 3 साल पहले, ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। क्या था? राम वॉज 5 times एज ओल्ड श्याम, राम जो था वो 5 गुना था, यानी राम ज्यादा था, तो ये कम था। तो यहाँ पे टाइम्स है, यानी मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर या इधर? श्याम की तरफ। एगो यानी पहले, 3 साल पहले। समझ में आ रहा है? ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है? 3 years ago। उसके बाद आएगा आपको डिफरेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड द डिजिट्स। क्वेश्चन आएगा कि देयर इज अ 2 digit नंबर, व्हेन द नंबर इज रिवर्स द न्यू नंबर इज, लेट्स से the new number is, let's say, 198 more than the old number, the sum of the digit is 5 and 6, what is the original number? Now you may be given this kind of statement, so the first thing you need to understand, what is the difference between a number and a digit. For example, हमसे ये कहा गया the sum of a number and the number reversed by the digits, example के तौर पे इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन भी होगा, the sum of a 2 digit number is 7, नहीं, of the digits of a 2 digit number is 7. If the digits are interchanged, the resulting number is 27 more than the original number. Find the original number. Now it's a good quality question in the sense that it says the sum of the digits of a 2 digit number. पहले तो आपको ये समझना है डिजिट और नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि इसको कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? 37। अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे? 237। इसको 234 बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं 230। ठीक है, अब चूंकि ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है। नाउ 2, 3, 4 आर नोन एज डिजिट, 2, 3, 4 आर नोन एज डिजिट, बट 234 इज नोन एज अ नंबर। समझ में आ रही बात? 234 यानी 234, बीच में प्लस होता है, तो अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर बात करना है तो मैं बोलूंगा 37, बेसिकली विच इज 30 plus 7। This 37 is a number which has 2 digits which are 3 and 7। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो नंबर क्या बनेगा? डिजिट स्टिल रिमेन द सेम, डिजिट तो वही है, लेकिन पोजीशन बदलने से नंबर की वैल्यू चेंज हो गई है। ये बात समझ में आ रहा है? नंबर 73 is a number which has 2 digits 7 and 3। 37 is a number which has 2 digits 3 and 7। तो अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर लेना है मान लो, तो क्या अपन एक्स वाई ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक्स इज अ डिजिट, वाई इज अ डिजिट, इसको लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा x into 10 plus y।
ये 37 क्या है? ये बेसिकली 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0। याद है 10वीं 6ठी 7वीं में एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते थे। तो अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर लेना है तो मुझे लेना पड़ेगा 10x प्लस वाई। मैं एक्स वाई नहीं ले सकता बिकॉज एक्स वाई इज अ डिजिट। एक्स वाई इज अ डिजिट। उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? वाई एक्स। उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? वाई एक्स। लेकिन नंबर कैसे बनेगा? y इंटू 10 प्लस एक्स। तो नंबर बनेगा, कुछ पल्ले पड़ रही है बात? अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर लेना है तो क्या मैं एक्स वाई जेड लूंगा? नहीं। क्या लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? 100x प्लस 10y। अगर इस नंबर को रिवर्स करूंगा तो नंबर क्या बनेगा? अब पीछे क्या गुटरगू कर रहे हो यार? डिस्टर्बेंस आगे तक आ रही है। अब हमें क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। क्या मतलब है इस पहले सेंटेंस का? 7 क्या है? सम। किसका सम? 2 डिजिट नंबर के डिजिट का। यानी अगर मेरे 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई, तो इसमें डिजिट्स क्या क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7। फिर क्या बोल रहा है? When the digits are interchanged, यानी जो 10x प्लस वाई, अगर हमने इसको 10y प्लस एक्स कर दिया, the resulting number is 27 more than the original number। क्या मतलब है? मान लो ओरिजिनल नंबर था मेरा 10x प्लस वाई, उल्टा करके रिजल्टिंग यानी न्यू नंबर बन गया 10y प्लस एक्स। अब इस अंग्रेजी के हिसाब से क्या मतलब है? रिजल्टिंग नंबर यानी जो नंबर बना, रिजल्टिंग नंबर यानी जो नंबर बना वो क्या है? 27 ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ओ या एन? जो नया बना है वो ज्यादा है, यानी एन ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब ये कम है। ये कितना ज्यादा है? तो या तो इसमें से 27 घटा दूं और या इसमें 27, तो दोनों बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये। सॉल्व तो कर ही लोगे, करके दिखाओ। इसको समझ लेना। देखिए मैं बताता हूँ, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाने में। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भी बता दो, ठीक है? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? सॉल्व करो। डिजिट मतलब जो नंबर होते हैं, नंबर का मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द डिजिट दिया हुआ है, यानी मान लो एक्स और वाई डिजिट्स हैं, तो नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। ये लिखा हुआ है भव्या ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। हुआ सॉल्व?
Yes, Manvi, correct answer. हो गया? हाँ भी हो गया। भव्या सुन लो एक बार, जिसको इसको नहीं बनाए समझो। ये कह रहे हैं हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो डिजिट्स मान लो x और y है, तो जो नंबर बनेगा वो 10x प्लस y बनेगा। ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7, यानी डिजिट्स का सम जो है वो 7 है। एक इक्वेशन ये है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर ये है, डिजिट्स रिवर्स करी तो नंबर बनेगा 10y प्लस x। ये रिजल्टिंग नंबर है। ये रिजल्टिंग नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। चूंकि ये 27 ज्यादा है, इसका मतलब ये कम है। कम में अगर 27 जोड़ दूंगा तो इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करेंगे। ये x को यहां ले आऊंगा तो 10x प्लस वाई माइनस x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 27। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। 9 3 जा 27। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। अगर हम इसको ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 5। x को यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू बनेगी 3 प्लस एक्स, यही बात है। तो y की वैल्यू बनेगी 8। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, x प्लस वाई 7 दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर बनेगा हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। दो क्वेश्चन और एंड देन वी आर डन। Two bats, 3 balls and 4 caps cost rupees 46.
3 bats, 1 ball and 6 caps cost rupees 62. Find the cost of each ball. नहीं कुछ बात कैट के यही मजे हैं, कैट में से ही आएगा। ये क्वेश्चन है।
कॉल की कॉस्ट कैलकुलेटर से किया है? बना? ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लीज पे अटेंशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। देखिए, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से, वहां कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, वी विल डेफिनेटली रिक्वायर 3 इक्वेशंस टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ all the 3 variables. Now in this particular case, the question that is asking us to find out the value of y, we cannot really find out the value of x and z. But we can find out the value of y. See, how do you know that we can find out a particular variable if such a scenario is given to us? Now, whenever we have to find a particular variable, what we have to see is you look at the variable other than what we have to find. अगर हम x का कोफिशिएंट देखें 2 है और z का कोफिशिएंट देखें 4 है, अगर मैं x और z का कोफिशिएंट का रेशियो निकालूं तो 1:2 लग रहा है। उसी तरीके से अगर इसका x का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट देखूं तो 3:2 यानी 1:2 है। इसका मतलब ये है कि अगर जिस वैल्यू को हमें निकालना है, अदर देन दैट वैल्यू बचे हुए वेरिएबल्स का कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब है वो दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली कैंसिल हो सकती हैं। इसका मतलब है इसको मान लेते हैं अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 2 से किया ताकि ये 6 बने। तो अगर हम 3 से करेंगे तो ये बनेगा 6x + 9y + 12z इज इक्वल टू 6 3 18 4 3 12 and 1 30 है। इसको करेंगे तो ये बनेगा 6x + 2y + 12z is equal to 124. Do you see that magically these two gets cancelled? So what do you get? 7y is equal to 14 and y is equal to 2, and you get an answer. Now it is not possible if the question was asking us what is the value of x, you will not be able to find out. What is the value of z? Once again we cannot find out. However, in CAT there will be questions that where we have to find like this, but then there we will be knowing some information as to x and y are integers, natural numbers, and then we have to go ahead and find out a lot of trial and errors and then figure out what are the number of possible answers that we will get. We will have questions like this. For example, if I tell you one previous year question was, let's say, if I remember, 3x plus 7y is equal to, let's say, 123. How many possible solutions exist? X, Y belong to, let's say, natural number. Right now, this is a CAT question where it says it's a linear equation, right? We are doing linear equation. So it's a linear equation of 2 variables and we are having only one equation, and then there are 2 variables and the examiner is asking us how many solutions exist. Now for all practical purpose, we've just studied that you can actually plot a graph and therefore there are infinite number of solutions. But if there are infinite number of solutions, the examiner would not be asking us this question. What is the limiting condition? The limiting condition is that x and y belong to natural numbers. Now if such a scenario exists, how would you solve this question? I'm just giving you some idea to get the glimpses of CAT. Let's say we need to find out the value here. So I would take x as 123 minus 7y divided by 3, right? Now I can take x is equal to 123 by 3 minus 7 upon 3y. So this will give me 41. So x value has to be 41 minus 7 upon 3y. Now from here I would try to figure out the value of x and y. Now I know x is an integer, natural number. Now 41 is also natural number. If I want to find out a natural number by subtracting something from natural number, this number must be natural. There is no other way. For example, 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन 5 में से 1.5 घटाऊंगा या 2.5 घटाऊंगा जो कि फ्रैक्शन है तो रिजल्ट फ्रैक्शन ही आएगा। तो इसका मतलब इसको नेचुरल बनाना पड़ेगा। नेचुरल बनाने के लिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 3 तो रखनी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास।
क्योंकि मैं y की वैल्यू 0 रख सकता था, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नेचुरल नंबर है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो y अगर आपने 3 रख दिया तो ये बनेगा 41 माइनस 7। 41 माइनस 7 कितना बनेगा? 34। अगली वैल्यू y क्या हो सकती है? 6, क्योंकि मल्टीपल तो होना चाहिए 3 का। अगर 4 रखोगे तो नहीं कटेगा, 5 नहीं 6। तो अगर इसकी वैल्यू 6 होगी तो इसमें से वापस 7 और घट जाएगा, 14 घटेगा, तो 41 माइनस 14 कितना बनेगा? 27। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 9। तो ये कितनी बन जाएगी? 20, क्योंकि 9 बनेगी तो 21 माइनस हो जाएगा। अगली पॉसिबल वैल्यू 12, तो ये बनेगा 13। अगली पॉसिबल वैल्यू इसमें बनेगी 15, तो ये बनेगा 6। अगली पॉसिबल वैल्यू बनेगी 18, तो ये बनेगा -1। आता जाएगा, लेकिन हमें इसके बाद का आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए। कितने आंसर हो गए? 1 2 3 4 5। तो इस सवाल का जवाब कितना है? 5 पॉसिबल आंसर। अगर यहां बोलता एक्स एंड वाई बिलोंग टू होल नंबर्स, तो आंसर कितना आ सकता था? 6। तो 0 एक्सेप्टेबल हो जाता है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे 0 रख देते तो यहाँ पे मेरा आंसर 41। उस केस में अगर होल नंबर होता तो ये आंसर वैलिड हो जाता। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन कैट एट लीस्ट, वेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी सर्टेनली मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। और ज्यादातर हमें वहां जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल एज टू व्हाट इज गिवन टू अस। वो नेचुरल नंबर देगा, होल नंबर देगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि 0 है या नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जो मैंने 2 क्वेश्चन बोले थे ये सेकंड वाला नहीं था, ये तो एग्जांपल था, समझा रहा था। सेकंड क्वेश्चन अब लिखो, लिखो लिखो, लास्ट क्वेश्चन। यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Sunil eats 2 dosas, 3 puris and 2 laddus. The bill amounts to rupees 54. If he eats 5 dosas, 6 puris and 4 laddus, the bill amounts to 118. If he eats 3 dosas, 3 puris and 2 laddus, then what should Sunil pay? अभी अभी ठीक करते हैं इसको। सुनील इट्स
कितना है? कैसे? पहले जो इक्वेशन को ऊपर डाल फिर ऊपर वाले धन्यवाद। नाउ यहाँ से है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे तीन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, कोई कोफिशिएंट मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है तीनों जो एंटिटी है उसको साइमल्टेनियसली रिजल्ट लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सीधा आंसर आ रहा है, या ऊपर में से हम नीचे कर दें माइनस 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 माइनस। अब नॉर्मली अब इसको करने के लिए कई बार ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, ऐसे सेटिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा आसान था, सीधा ऑब्जर्वेशन में था कि भाई 3 लाना है तो कैसे लाया जा सकता है, सीधा सब्ट्रैक्ट करके। अगर ये 3 सब्ट्रैक्ट करके नहीं आता तो कुछ मल्टीप्लाई करते ऊपर, कुछ मल्टीप्लाई करते नीचे, फिर ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, कुछ ना कुछ करना पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कैसे, पहले एक वैल्यू को टारगेट कर लो कि भाई अपने को 3 लाना है, 3 लाने के लिए इस केस में सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो ये वैलिड है तो अगले वाला चेक कर लो, और अगर 3 लाने के लिए कुछ और करना पड़ता है तो वो करो। एक वैल्यू रिजल्ट आ गया तो देखो क्या सेकंड वैल्यू का रिजल्ट मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना वापस जाओ, कुछ और जुगाड़ करके ले आना पड़ेगा। ये प्रोसेस होता है सोचने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यहाँ पे 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन। हम इसको और भी डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे स्पेशल इक्वेशन में। आपकी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्पेशल इक्वेशंस है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन उसके पहले हमें ये सारा जो बेसिक लेवल का है प्रैक्टिस है वो कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो दिस विल टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सिंपल इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने मोटे मोटे सारे एग्जांपल्स जो टिपिकल टाइप के, अरे कहाँ खड़े हो रहे, बैठो, कहाँ जा रहे हैं? क्या खेत में पानी डालना है? ऑनलाइन पूछ। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ है प्रॉब्लम किसी को? भव्या, मानवी, पारुल, एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, कंफ्यूजन? Okay. Chalo then I'm ending this session. Thank you very much and have a nice evening, guys.